Hello student, welcome to my new channel. Let's bloom up. Today we will start a new chapter of class 9 and 10. That is from the book Treasure Chest. This is for ICSE 2025 examination. Let's begin. Hmm, Today we will I will explain in Hindi and another class will be on English explanation. Okay? Bonku Babu friend. Today we will do fourth chapter of this book, that is Bonku Babu friend. चलो शुरू करते हैं. No one had ever seen Bonku Babu get cross. To tell the truth, it was difficult to imagine what he might say or do. If one day he did get angry, I was not as if there was never any reason for him to lose his temper. For the last 22 years, Bonko Babu had taught geography and Bengali at Kakurgachi Village Primary School. Every year, a new branch of students replaced the old one, but old or new, the tradition of teasing poor Bonko Babu continued among all students. Some drew his cartoon on the blackboard, others put glue on his chair. On the night of Kali Puja, they lit a chasing rocket and set it off right behind him. हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है बोंको बाबू एक आदमी है, वो एक टीचर भी है. बोंको बाबू को कोई ने नहीं देखा है कि उन्होंने अपना लिमिट क्रॉस किया है, मतलब कि उसने कभी गुस्सा किया है. और मतलब जो भी वो लोग जो फ्रेंड्स स्टूडेंट जो भी बोल देते थे, परंतु उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कभी वो एंग्री नहीं होता था. वैसा कोई बात नहीं है कि बोंको बाबू का कभी भी टेम्पर लूज़ नहीं हुआ है. बहुत रीज़न से कि उसका टेम्पर लूज़ हो सकता था, गुस्सा आ सकता था उसको. उन्होंने 22 सालों मतलब 22 ईयर्स से बोंको बाबू ने ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ाया है. कौन से स्कूल में? काकुरगाची विलेज प्राइमरी स्कूल. ये स्कूल का नाम प्लीज़ मार्क कर लीजिए, काकुरगाची विलेज प्राइमरी स्कूल. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं एग्ज़ाम में. ओके. हर साल स्टूडेंट्स रिप्लेस होते रहते थे, बट पुराने या नए बोंको बाबू को स्टूडेंट्स भी चिढ़ाते थे. कोई ऐसा कोई बात नहीं था चेंज हो गए तो स्टूडेंट्स नहीं चिढ़ाते थे, बट हर न्यू और ओल्ड दोनों स्टूडेंट चिढ़ाते थे. वो से क्या क्या कराया जाता था ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये वापस से उसका कार्टून ब्लैक बोर्ड में बना दिया जाता था, मतलब वो बोर्ड होता है उसमें बना दिया जाता था. ग्लू डाल देते चेयर पे. और एक बार तो काली पूजा के नाइट पे चेजिंग रॉकेट छोड़ दिया उसके पीछे. ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन. ये एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द केसेस में आ सकते हैं. Bonku Babu did not get upset by any of this. Sometimes he cleared his throat and said, "Shame on you boys." One of the reasons for maintaining his calm was simply that he could not afford to do otherwise. If he lose his temper and left his job in a fit of puke, he knew how difficult it would then to bear find another at this age. Another reason was that in every class there were always a few good students, even if rest of the class were full of pranksters. Teaching this handful made his life as a teacher worth living. At times he invited those boys to the school, offered them snacks, and told them tales of foreign lands and exciting adventures. He told them about the life in Africa, the discovery of the North Pole, the fish in Brazil that ate human flesh, and about Atlantis, the continent submerged under the sea. He was a good storyteller. He always had his audience unthrilled. During the weekend,
Bonku Babu went to the lawyer Shripati Majumdar house to spend the evenings with other regulars. On the number of occasions he had come back, nothing. यहाँ तक पहले हम लोग समझते क्या बोलना चाहते हैं. बोंकू बाबू कभी ये सब चीज़ों से गुस्सा नहीं होते थे. मतलब वो चेयर पर ग्लू लगाना, ब्लैक बोर्ड में कार्टून ड्रॉ करना, काली पूजा वाले दिन चेजिंग रॉकेट छोड़ देना, वो सबसे गुस्सा नहीं होते थे. परंतु कभी कभी वो अपना आवाज़ ठीक करने के लिए मतलब बहुत गुस्सा हो जाते थे तो खाली एक ही बार बोल देते, सेम ऑन यू बॉयज, शर्म आना चाहिए तुम लोग को, ये बोल देते थे. बस उनका एक और रीज़न था शांत बैठने का, क्योंकि उनका कोई चारा नहीं था उसके अलावा. अगर वो टेम्पर खो देते, मतलब वो गुस्सा बहुत कर देते और जॉब लेफ्ट कर देते थे, उन्हें पता था कि कितना मुश्किल होगा दूसरा जॉब ढूंढना, और वो भी इस एज में. और एक और रीज़न था कि हर क्लास में 4-5 तो गुड स्टूडेंट्स होते ही थे और बजाय और सब प्रैंकस्टर्स हो, मतलब मजाक उड़ाने में, बस 2-3 अच्छे स्टूडेंट होते थे. और उनके लिए ये थोड़े से बच्चे, मतलब 4-5 बच्चे को पढ़ाना उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी था. उन्हें बहुत अच्छा लगता था. उन्हें ये दिखता था कि वो ये कर रहे हैं जिससे कि वो उनका लाइफ काबिल बन जाए. मतलब वो उसे पढ़ाकर वो बहुत खुश होते थे. और जो सब अच्छे बच्चे थे उन लोग को घर बुलाते थे, खाना देते थे, टेल्स सुनाते थे, या आगे दुनिया का खबर देते थे, कैसा फॉरेन लैंड्स, एक्साइटिंग एडवेंचर्स. ये भी बताते थे अफ्रीका में कैसा लाइफ होता है, डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ पोल भी बताते थे, फिश ऑफ ब्राज़ील भी बताते थे. फिश ऑफ ब्राज़ील जो ह्यूमन फ्लैश जो खाते वो भी बताते थे. एटलांटिक्स के बारे में बताते थे. वो एक कॉन्टिनेंट है जो सी के नीचे दबा हुआ है. वो एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, बहुत अच्छा स्टोरी सुनाते थे. ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है बड़ा सारा 1 से लेकर इंशल तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. इसमें 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं. पहला क्वेश्चन देख लीजिए. उनके पास इस एज में वो स्कूल दूसरा क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते थे? ये होगा अपने मन का क्वेश्चन. खुद के सोचने के बाद ये लिखना होगा आंसर. ओके, इस एज में वो एक दूसरे स्कूल में पढ़ा क्यों नहीं सकते थे? वो एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कि वो ये स्कूल छोड़ना क्यों नहीं चाहते थे? गिव एनी 2 रीजंस. ये दोनों रीजंस लिखना होगा. ओके, उनको अपना टीचर का लाइफ वर्थ लिविंग कब दिखता था? वो गुड बॉयज़ को इनवाइट करते थे हाउस में, तो वह उसको कैसा ट्रीट करते थे? एक और क्वेश्चन. और उन लोग को वो कौन सा टेल्स सुनाते थे? वो भी एक और क्वेश्चन आएगा. ओके, ये पैराग्राफ में से. चलिए आगे चलते हैं. ड्यूरिंग the weekend, Bonku Babu went to the lawyer Shripati Majumdar house to spend the evenings with other regulars. On a number of occasions, he had come back thinking, enough, never again. The reason was simply that he could put up with the pranks played by the boys in his schools. But when grown-ups, even middle-aged men, started playing the fool with him, it became too much to bear. At the Adas, the Shripati Babu hosted in the evenings, nearly everyone poked fun of Bonku Babu, sometimes bringing his endurance almost the breaking point. Only the other day, less than 2 months, there were talkings of ghosts. Usually, Bonku Babu kept his mouth shut. That day, for some unknown reason, he opened it and declared that he was not afraid of ghosts. That was all. But it was enough to offer a golden opportunity to the others. On the way back home later that night, Bonku Babu was attacked by a spook.
As he was passing under a tamarind tree, a tall, thin figure leapt down and landed on his back. As it happened, the apparition had smudged black ink all over itself, possibly at the suggestion of someone at the meeting. Bonku Babu was not frightened, but he was injured. For 3 days his neck ached. Worst of all, his new kurta was torn and it had black stain all over. What kind of joke was this? Even so, Bonku Babu had to come to these meetings. If did not, what would Shripati Babu think? Not only was he very important man in the school community and in the village, but he could not do without the Bonku Babu, who could provide amusement to all. चलिए हम लोग ड्यूरिंग से तक यहाँ एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। बोंकू बाबू ये वीकेंड में एक लॉयर के पास गए थे। उनका नाम क्या था? श्रीपति मजुमदार। ये नाम याद कर लीजिए, MCQs में आ सकता है। उन्होंने कौन से लॉयर नाम बताइए? ये होगा श्रीपति मजुमदार। इवनिंग में गए थे। वो बहुत बार आते थे सोचते हुए अब बस बहुत हो गया, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। इनफ, नेवर अगेन। ये भी वर्ड याद रखिए, आप आंसर्स में ये यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक रीज़न था, क्या रीज़न था कि वो प्रैंक्स बच्चे लोग का झेल लेते थे। मतलब छोटे बच्चे हैं, स्कूल में मजाक तो कर ही सकते हैं, झेल लेते थे। परंतु जब बड़े लोग उनका मजाक उड़ा ले तो उन्हें बहुत दुख होता था। वो बात वो बहुत दुखी होते थे। जब भी श्रीपति बाबू, मतलब ये लॉयर श्रीपति मजुमदार, जब भी इवनिंग में एक हॉस्ट करते थे मीटिंग्स, तो सब लोग बोंकू बाबू का मजाक उड़ाते थे। कभी कभी तो वो इतना मजाक उड़ाते थे कि उनका गुस्सा मिड पॉइंट तक, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट तक, मतलब और एक और सब बोले तो हो गया उन लोग का। ये दूसरा दिन का ही बात है, 2 मंथ ही हुआ होगा। वो श्रीपति मजुमदार के हाउस में ये बात हो रहा था, घुस के बारे में बात हो, भूटों के बारे में बात हो रहा था। बोंकू बाबू हंस रहे मुँह बंद ही रखते थे मोस्ट ऑफ द केसेस में, परंतु कोई ऐसा रीज़न होगा उन्होंने खोल दिया मुँह और बोला मैं अफ्रेड नहीं हूँ घुस का। ये बहुत था, इतना बहुत था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया श्रीपति बाबू के घर में लोगों का। उसी दिन नाइट हो गया था, जाते वक्त बोंकू बाबू स्पूक, मतलब डर गए। वो एक ट्री के नीचे चल रहे थे, उन्होंने देखा लंबी, थिन, पतली और एक उनके गले पर आकर कूद गई। और वो इतना अपीयरेंस उसका कैसा था? एप्रेशन मतलब बता अपीयरेंस, और उसके ऊपर ब्लैक इंक पूरा फैला हुआ था, जैसे कि कोई जन मीटिंग में आया होगा। बोंकू बाबू उससे न डले, बट वह इंजर्ड हो गए क्योंकि उसके ऊपर कूदा गया। नेक उनका बहुत दुख रहा, 3 दिनों तक दुखा। याद रखिए, हाउ मैनी डेज? 3 डेज। ये याद रखिएगा, 3 डेज। बहुत हुआ, ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ओके। सबसे बुरा चीज़ क्या हुआ, उसका जो उनका न्यू कुर्ता था, मैं नया कुर्ता जो पहन कर आए थे, उसके ऊपर पूरा ब्लैक इंक्स हो गया था और वो पूरा फट गया था। उन्होंने चिल्लाया, ये कैसा मजाक था? व्हाट काइंड ऑफ जोक वाज इट? इवन सो बोंकू बाबू, उन्हें तो मीटिंग में जाना भी था। अगर वो नहीं जाते तो श्रीपति बाबू, मतलब श्रीपति मजुमदार, जो हम लोग ने यहाँ पर ऊपर पढ़ा, श्रीपति मजुमदार दिखाता हूँ, श्रीपति मजुमदार जो हम लोग ने पढ़ा यहाँ पर, वो क्या सोचेंगे? सोचिए वो क्या सोचेंगे। ये वो सोचे, वो इम्पोर्टेंट मैन नहीं थे स्कूल कम्युनिटी के, विलेज में, परंतु श्रीपति बाबू, बोंकू बाबू के बिना मीटिंग नहीं हो पाता। सब लोग को वो मजाक कैसे होता सब लोग के सामने उनका। On one particular day, the topic of conversation was space. In other words, they were talking of spaceship and space travel. Soon after sunset, a moving point of light
had been seen in the northern sky. A similar light was seen 3 months ago, which had led to much speculation. In the end, it had turned out to be a Russian satellite called Khotaka, or was it Puska? Anyway, this satellite was supposed to be going around the Earth at the height of 400 miles and providing a lot of valuable information to the scientists. एक दिन था, एक टॉपिक पर कॉन्वर्सेशन मतलब बात चल रही थी किस कौन से टॉपिक पर, स्पेसशिप और स्पेस ट्रैवल के बारे में। सनसेट के बाद मतलब सूरज के ढकने के बाद एक लाइट हम देखा गया जो नॉर्दर्न स्काई की तरफ था। ऐसा ही सेम लाइट मतलब ये सिमिलर लाइट 3 महीने पहले भी देखा गया था। वो 3 महीने पहले भी देखा गया, उसको नाम दिया गया था रशियन सैटेलाइट। वो रशियन सैटेलाइट था खोटका, और उसको एक और नाम दिया गया, उसका नाम था फोस्का। देखिए ये दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, खोस्का कोटका जो भी है, ये दोनों स्पेलिंग्स एकदम सही याद रखना, ठीक है। ओके, ये एक सैटेलाइट था जो 400 माइल दूर और के चारों ओर घूमने वाला था और बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला था साइंटिस्ट लोग को। ओके, समझ में आया? नीचे चलते हैं। मैं ये बोल देता हूँ, आज हम लोग ये 72 पेज का पहला पैराग्राफ पढ़ के छोड़ेंगे। ओके, That particular evening, Bonku Babu was the first to spot the strange light. वो वाला दिन बोंकू बाबू थे जो पहले जन थे जिन्होंने वो लाइट को देखा था। फिर उन्होंने बुलाया, निंदू बाबू। ये कौन नाम आ गया आप? निंदू बाबू इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, निंदू बाबू। निंदू बाबू को बुलाया और उसको दिखाया। निंदू बाबू इम्पोर्टेंट नाम है, मैं बोल दिया 10 बार कि उसका नाम याद रखिएगा। जब निंदू बाबू मीटिंग में आए, मतलब जब बांकू बाबू आए, निंदू बाबू को देखे कि जो भी वो सैटेलाइट था उसका फुल क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने पहली बार देखा, कोई ने नहीं देखा। बल्कि किसने पहली बार देखा था? बोंकू बाबू ने। तब भी बोंकू बाबू ने कुछ नहीं कहा। कोई को नहीं पता था ये इतना, ग्रुप में कोई को नहीं पता था इतना इस सब बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में। तब भी वो क्या थे, निंदू बाबू तब भी सैटेलाइट्स के बारे में ज्ञान दिए जा रहे थे बिना मतलब ज्ञान, उनको भी नहीं पता था सैटेलाइट के बारे में, तब भी वो बोल रहे थे। परंतु बोंकू बाबू को पता रहा, क्योंकि बोंकू बाबू क्या थे, ज्योग्राफी के टीचर थे, याद होगा। आप ऊपर में देखिए मैं दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। बोंकू बाबू एक ज्योग्राफी के टीचर थे, ये भी नाम याद रखने हैं। देखिए अच्छे से हुआ नहीं, सॉरी। ज्योग्राफी और कुछ करे बंगाली के, याद रखना। ओके, चलिए नीचे चलते हैं। एक और जन आ गए, चंडी बाबू आ गए। चंडी बाबू ने बोला, उन्होंने बोला कोई जगह पर दिखता है, हर जगह पर नहीं दिखता ये सब सैटेलाइट्स, और इतना भी एक्साइटेड होने का बात नहीं, एक सैटेलाइट देख लिए थे। हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिए। हम लोग अगले क्लास में, याद रखिएगा, हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, माफ़ कर लीजिए, राम कहानी से शुरू करेंगे। ओके, अरे सॉरी, अरे हमने आज 2 पेज किए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ ये दोनों पेज में से प्लीज़ मुझे बोलिएगा, मैं आपको ना, देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पेज का। आपको मैं 2 बार और दिखा देता हूँ। ये एक पेज है, 2 सेकंड की रुकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे होप करता हूँ। और ये दूसरा पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होगे आपको लेना। और ये रहा, ये तीसरा पेज है जो हम लोग आधा किया, आधा बाकी। ओके, हम लोग जब तक अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर टैग कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर लिख दीजिएगा, मैं आपको इनसे अगले क्लास में
श्योरिटी के साथ दे दूँगा। मैं इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है। जब तक के लिए बाय बाय। कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, उसको देखकर प्लीज़ देख लीजिएगा इंस्टाग्राम का आईडी को। उसमें लिख दीजिएगा, मैं आपका आंसर देते रहूँगा। ओके, जब इंस्टाग्राम का आईडी दिया उसमें आप लिखकर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर पॉजिटिवली टू माई वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बाय द वे, मैं एक और चीज़ बोलना भूल गया, ये खाली चैप्टर क्लास 9 में आता है, क्लास 10 में नहीं आता। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेज ये चैप्टर किस में आता है बोलो, हाफ ईयरली में आता है। मेरा 18 नंबर का एग्ज़ाम होता है ICSE में, उसमें आता है। और ये 20 नंबर के एग्ज़ाम में भी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। मोस्ट ऑफ द केसेज में दिखता आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंस्टाग्राम का आईडी कमेंट बॉक्स में है। प्लीज़ जो भी क्वेश्चन होगा प्लीज़ आप पिन किया हुआ कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम का आईडी, उसमें आप मैसेज पक्का लिख दीजिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में नहीं तो बायो में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, तीनों जगह दिया हुआ है। जहाँ आपको देखना हो वहाँ देखिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।